नमस्कार। आप सबको भारतीय जनता पार्टी इंटेलेक्चुअल सेल महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री रविंद्र माधव साठे जी, जो हमें हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और अपने राम भाव मालगी प्रबोधिनी के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने शायद काफ़ी कुछ सुना भी होगा, लेकिन आज हम सीधा उनकी जुबानी सुनेंगे कि क्या कर रहे हैं राम भाव मालगी प्रबोधिनी में और क्या उनकी विजन है और हम किस तरह से अपने देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, हम आगे जैसे कॉन्वर्सेशन चलेगी, आज की हमारी इंटरव्यू लेने वाली हैं श्री हेलो हेलो। Yes, yes, yes. हाँ जी, आज के हमारे इंटरव्यू लेने वाली हैं श्रीमती सुकन्या जी, सुकन्या अय्यर जी। वेलकम सुकन्या जी। Thank you. और आज का हमारा एक टॉपिक होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे, विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ रामभू मालगी प्रबोधिनी। तो साठे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में एक सोच के। वेलकम सर। सुकन्या जी, हैंडिंग ओवर टू यू। Thank you, Manpreet जी. वेलकम मिस्टर रविंद्र साठे जी, आपका बहुत स्वागत है बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल महाराष्ट्र में प्रज्ञा प्रकोष्ठ बुद्धिजीवी। एंड आपको इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए एक गर्व की बात है और इसीलिए मैंने सोचा कि इस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में, इस वैश्विक महामारी काल में आप जैसे वरिष्ठ जो और एक सोच रखते हैं राम भाव मालगी प्रबोधिनी के डायरेक्टर, तो मैंने सोचा इससे अच्छा एक समय, इससे अच्छा एक काल नहीं हो सकता है कि आपके अनुभव के जो विचारधारा, आपके विचारधारा, आपके अनुभव सब मैं सुन सकूंगी। वेलकम मिस्टर रविंद्र साठे जी, आपने अपना समय, बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Manpreet ji. And here we are, and we are welcoming on behalf of Intellectual Cell, Mr. Ravindra Sathe ji. Sir, you need no introduction, but this is a formality that I have to do it for you. Born on July 16th, 1964, Mr. Ravindra Sathe ji, I have to give his credentials. He has finished his graduation from University of Mumbai in 1985. Thereby, he goes on to do his business management, affiliated to Mumbai University again. भाषा जिसमें संवाद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखित और जो रीडिंग राइटिंग, उसमें जो भाषा जो इनको इनके जानकारी है इनको, वो सब है इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी। बहुत सारा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, प्रोफेशनल जो इनकी जो भूमिका इन्होंने जो निभाई है, ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, he organizes, he has got a capacity to organize exceptionally large number of community by sheer motivation. One person is me sitting in front of you. He has motivated me immensely. Thank you so much, sir. Human resource development, इनका एक specialization है. Designing, execution of training as public awakening program for various strata of society, right from a rural youth, that is from panchayat level worker to people's representatives. Who are those people's representatives? Such as MLA, MPs and also including ministers. Leadership development इनका एक strength है. Leadership development में possesses skills to develop leadership skills, qualities amongst leaders by designation. Event management, development and planning work for organization of various events ranging from seminars to convention, and also he does traveling workshop. Publication and printing, also he had tried a stint, printing quality publications as well as their publicity and effective distribution. इनका इंटरेस्ट नक्सलिज्म में आर्टिकल्स लिखना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुमूल्य इनका योगदान रहा है. स्पेशली ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस प्रचारक भी रहे हैं 7 वर्ष तक. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मैं सोचती हूँ आपकी जो भी
ideas and ideation process. Before I start, I would like to quote Swami Vivekananda. As Swami Vivekananda ji says, quotes, that to start an idea, where to generate an idea, once the idea is generated, executed and implemented, we give nerves, bones and muscles to give it a shape. Here is Mr. Ravindra Sathe. He has given his nerves, bones and muscles to IIDL, where it is today, and he has given immense contribution to make it, to give it a shape in front, and created many leaders. Welcome, Mr. Ravindra Sathe, to our panel, and you took so much of time in these unprecedented time, and in these unprecedented scary moments, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक लाइन बोलती रहती हूँ हमेशा, हम होंगे कामयाब, हम होकर रहेंगे कामयाब. So इस पॉजिटिव नोट, इस पॉजिटिव सेंटिमेंट से हम शुरू करेंगे. And I think we'll have first the documentary of IIDL. I think Manpreet, you should share that, and viewers should know what IIDL stands for and how it has created leaders, the future leaders, the vision and mission statement of IIDL. And the director, none other than Ravindra Sathe. Yes, Manpreet, please share the documentary. विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये चुनौती है गवर्नेंस की। गवर्नेंस यानी केवल कुर्सी पर बैठकर प्रशासन चलाना नहीं। गवर्नेंस में निर्णय प्रक्रिया, क्रियान्वयन और जो भी कदम उठाए जाते हैं उनकी परिणामकारकता समाविष्ट है। मगर चुनाव जीतने की होड़ में लगे राजनेता क्या इन सभी विषयों को जानते हैं? अगर वो नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो लोकतंत्र को केवल बाबू तंत्र बनने से भला कौन बचा सकता है? यहीं पर विषय आता है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के क्षमता विकास का। सन 1982 से लगातार रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी इसी महत्वपूर्ण मिशन में जुटी हुई है। भारतीय जीवन दृष्टि के आधुनिक भाष्यकार और विचारक राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन पर आधारित ये संस्था विकसनशील जनतांत्रिक देशों में अपनी तरह की ऐसी एकमात्र संस्था है। देश के एक आदर्श सांसद के नाते नवाजे गए रामभाऊ महालगी की स्मृति में इस संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था के विकास में संस्था के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का योगदान अविस्मरणीय है। जनतंत्र एक दृष्टि से अंतर्निहित है। लोगों को ये स्वाभाविक रूप में लगता है कि जनतंत्र के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। बावजूद इसके जनतांत्रिक प्रणाली की परिणामकारकता, उसके बारे में संदेह है। जो निर्वाचन क्षम है उनको हम शासन क्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनकर आना एक कला है और वो भी कोई सामान्य कला नहीं है। चुनकर आने के बाद संतातंत्र के संचालन में आपकी कुशलता की कसौटी है। तो वो कुशलता आप कहां से अर्जित कर सकते हैं? उसका जवाब है रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी। प्रबोधिनी के मिशन का पहला भाग है प्रशिक्षण। यद्यपि प्रबोधिनी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए काम करती है, पर प्रबोधिनी का प्रशिक्षण एजेंडा केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ता तथा सक्रिय पत्रकारों से लेकर शिक्षकों तथा शासकीय अधिकारियों तक प्रबोधिनी सभी के क्षमता विकास के लिए सक्रिय है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं और अपने चप्पल है वो बाहर रखते हैं, वैसे ग्राम पंचायत के अंदर जाने के बाद पक्षभेद बाहर रखना चाहिए। गांव की भलाई के लिए जनता ने हमें निर्वाचित किया है, जनता का भलाई करना यह हमारा काम होना चाहिए। ये मैंने ट्रेनिंग के बाद सीखा। इसी क्रम में युवाओं के लिए विशेष नेतृत्व साधना कार्यक्रम प्रबोधिनी द्वारा विकास किया गया कलेक्टिव मेंटरिंग का एक असाधारण प्रयोग है। यहाँ दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मुख्यतः प्रेरणा का संवर्धन, कार्य का व्यापक आकलन और कुशलता का विकसन साध्य किया जाता है।
श्रीनगर में जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे, युवाओं का एक पूरा समूह था और उस युवा समूह में जम्मू कश्मीर की एक युवा नेत्री जो वैसे राजनीतिक परिवार से थी, परंतु इस प्रशिक्षण के बाद उसका राजनीति का नज़रिया, मूल्यों का नज़रिया, राष्ट्र का नज़रिया और नेतृत्व का नज़रिया, सबकी सब दृष्टियाँ बदल गई। 2017 में प्रबोधिनी ने भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान की स्थापना करके एक नई पहल की है। ये संस्थान उन नवयुवकों को जो राजनीति, शासन, सार्वजनिक मामलों और नेतृत्व के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी नेतृत्व शैली का विकास कर पाने के लिए प्रशिक्षित करती है। संस्थान के 9 महीने के आवासीय प्रशिक्षण कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस उत्तीर्ण करते हुए राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व के किसी न किसी प्रयास में जुट रहे हैं। प्रशिक्षण के विषय में प्रबोधिनी द्वारा अर्जित विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के कारण अब केंद्र और अनेक राज्यों की सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं ने भी प्रबोधिनी के साथ सामंजस्य बिठाकर नए उपक्रम शुरू किए हैं। हर साल प्रबोधिनी औसतन 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, जिससे लगभग 2000 प्रतिभागी प्रशिक्षण पाते हैं। म्हाळगी प्रबोधिनी उत्तनला आहे, मी स्वतः एकदा जाऊन बघून आलेलो आहे आणि माझी फार वर्षापासून इच्छा आहे की अशी प्रबोधिनी राजकीय पक्षाने प्रत्येकाने कार्यकर्ता तयार करायला, प्रबोधन करण्यासाठी काढलीच पाहिजे। प्रबोधिनी के विभिन्न प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रमों को अब विश्वविद्यालयों की भी मान्यता है। प्रशिक्षण के साथ साथ प्रबोधिनी का दूसरा पहलू है समसामयिक महत्व के विषयों पर व्यापक जन जागरण। इनमें परिचर्चाएं, चर्चा सत्र, परिसंवाद, कार्यशालाएं, छात्र युवाओं के लिए वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं और नियमित रूप में होने वाले अध्ययन मंडल जैसे विभिन्न कार्यक्रम समावेश हैं। प्रबोधिनी के काम का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शोध। सामाजिक कार्यकर्ताओं, उदीयमान पत्रकारों तथा समाज के अन्य विचारशील व्यक्तियों में शोध परक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हुए प्रबोधिनी कई शोध प्रकल्पों को हाथ में लेती है। कुछ शोध प्रकल्प समूहों द्वारा मौके पर जाकर यानी ऑन द स्पॉट अध्ययन के रूप में होते हैं, जबकि कुछ शोध प्रकल्प चयनित अध्येताओं को शोध पाठ्यवृत्ति देकर पूरे किए जाते हैं। प्रबोधिनी द्वारा संपन्न शोध प्रकल्पों की कुल संख्या 300 से अधिक है। इनमें लगभग 750 शोधकर्ताओं का सहभाग रहा। व्यक्तिगत पाठ्यवृत्ति धारक शोधकर्ताओं में से कुछ आज समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके हैं। नवगठित स्वैच्छिक संस्थाओं के संचालन में सेवा की प्रामाणिक ऊर्जा के साथ प्रोफेशनल दृष्टि विकसित करने के लिए प्रबोधिनी एक विशिष्ट योजना भी चलाती आई है। प्रबोधिनी की विकास यात्रा 1982 से प्रारंभ हुई। प्रबोधन, प्रशिक्षण और शोध, इस त्रिसूची पर आधारित प्रबोधिनी के संस्थात्मक विकास के कई आयाम हैं और कई उल्लेखनीय उपलब्धियां भी। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी अद्वितीय संस्थान है। शुरू में तो कल्पना थी कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ संबंधित संस्थाएं हैं, उनके लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके वह सब प्रकार की संस्थाओं के लिए भी एक असाधारण एक केंद्र बन गया है। कम से कम साउथ एशिया में कोई दूसरा ऐसा संस्थान नहीं है। इसी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था 6 जनवरी 2003, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रबोधिनी के ज्ञान नैपुण्य केंद्र नॉलेज एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। शायद ये पहला प्रयास है अपने ढंग का, और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। जो कुछ आज देखा मैंने, मुझे आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है।
प्रशिक्षण का रूप क्या हो, उसका विवरण क्या हो, ये प्रबोधिनी तय करेगी। प्रबोधिनी के विभिन्न संस्थापक आयामों में प्रकृति से घिरा हुआ प्रबोधिनी का यह विशाल परिसर विशेष महत्व का है। कला दृष्टि से साकार इस सुविधाओं की सृष्टि को ज्ञान नैपुण्य केंद्र कहा जाना स्वाभाविक है। एक संपन्न ग्रंथालय, योग और व्यायामशाला, तरण तालाब, हेलीपैड, परिसर में उत्पादित कूड़े कचरे से जैविक खाद निर्मित संयंत्र, पानी का संवर्धन तालाब जैसी विशिष्ट व्यवस्थाओं से परिसर सुसज्जित है। सुरुचिपूर्ण आरेखन और सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण कई कॉरपोरेट संस्थाएं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस ज्ञान नैपुण्य केंद्र की सुविधाओं का उपयोग करती हैं। जो भी यहाँ आता है ज्ञान का प्रकाश और प्रयासों की प्रेरणा लेकर लौटता है। जिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं, इसी प्रकार की ट्रेनिंग विषय अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग प्राप्त करने का मुझे भी सुअवसर यही प्रबोधिनी में मिला। जहाँ आज आप बैठे हैं वहीं मैं भी बैठा करता था। यहाँ के वर्क कल्चर, अनुशासन, कर्तव्य परायणता और निष्ठा से सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आकर सबको प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रबोधिनी के विदेश विभाग यानी RMP इंटरनेशनल द्वारा विदेशी छात्र युवाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण एवं मेंटरिंग, प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान और यूनाइटेड नेशंस में विविध कार्यक्रमों एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि कई महत्वपूर्ण उपक्रम संपन्न हुए हैं। भारत सरकार के नीति आयोग के सहयोग से अब प्रबोधिनी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर कार्य कर रहा है। Collaboration between Niti Aayog and RMP has been a very successful one, and I look forward to further such collaboration in bringing together civil society organizations and in ensuring that these organizations play an important role in the government policy formulation and its implementation throughout the country. RMP, with its vast network and its long experience on the civil society front, will be a very useful partner for Niti Aayog. प्रबोधिनी का कार्य भारतीय जनतंत्र को मजबूती देने वाला एक महान मिशन है। नेतृत्व की सुप्त शक्ति हर व्यक्ति में होती है। नेतृत्व का विकास धन शक्ति पर, घराने की पृष्ठभूमि पर या फिर अपनी धर्म या जाति की पहचान पर निर्भर नहीं रहता। नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है एक सेंस और पर्पस, एक सघन उद्देश्य पूर्णता, प्रेरणा, जागरण, अध्ययन और कुशलता का संस्कार। ये सब बिंदु आते हैं उसी के पश्चात। जनतंत्र, जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, सुशासन, इन विषयों के अलावा प्रबोधिनी ने पानी, मानवाधिकार, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देकर प्रबोधिनी ने अपने कार्य को अधिक व्यापक किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल, मालावी, नीदरलैंड्स, अमेरिका जैसे जनतांत्रिक देश में जो व्यक्ति आए और संस्था है, उनके साथ भी प्रबोधिनी ने काम करना प्रारंभ किया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर एक बहुआयामी संस्था जीवन फलता फूलता नजर आ रहा है। प्रबोधिनी भविष्य के नेताओं की फैक्ट्री नहीं है, ये एक संस्कार शाला है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन क्यों और कैसे जीना, इसके संक्षिप्त पाठ इन्हीं संस्थात्मक प्रयासों से पढ़ाए जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम मानते हैं कि यही कार्यकर्ता कल के मजबूत राष्ट्र का आधार स्तंभ है। इन्हीं में से कई देश के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व भी करते हैं। हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए उस क्षेत्र का ज्ञान, उस क्षेत्र का अनुभव निश्चित ही लाभान्वित करता है। ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में अधिकार के साथ कार्य कर सकता है। सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए भी सफलता के लिए प्रशिक्षण एक महत्व का आधार सिद्ध होता है। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी लगभग 40 वर्षों से समाज में ऐसे कई कार्यकर्ताओं को रणनीतिक, कार्यात्मक एवं रचनात्मक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कई लोगों ने
आज तक इस काम में योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी वे पूरी तरह से इस कार्य में अपना योगदान देंगे। सभी के सहयोग से, सक्रिय भागीदारी के साथ आज तक कई कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्य हुआ है। इस कार्य में भविष्य में भी आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत होगी और मानव सेवा के इस कार्य को आपकी मदद मिलेगी। अधिक अच्छे नेता मिलेंगे तो सुशासन व्यवस्था मिलेगी, और सरकारें अच्छा काम करेंगी तो सबसे पहले देश मजबूत होगा। लोकतंत्र का ये ज्ञानपीठ आपकी सदिच्छाओं के सहारे बढ़ना चाहता है, आगे और निरंतर आगे। थैंक यू सो मच सर। एक आइडिया था, रामबाबू मालगी प्रबोधिनी एक इंस्टीट्यूशन है, पर ये इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन ना होने के बदले इट क्रिएट्स लीडर्स इन 360 डिग्री पर्सपेक्टिव व्यू। आज हमें पता चला, व्यूवर्स को भी पता चलेगा, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग, इट्स अ ग्रेट इंसाइट एंड अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन एंड you should tell us that what are all the courses that you're offering, how people can utilize, how people can get benefited, and what are the takeaways from Rambhav Malgi Prabodhini, and how this institution creates future leaders with 360 degree perspective for future Bharat, and also it will lead to Atmanirbhar Bharat. Thank you, Dr. Sukanya ji, and all the Karyakartas and viewers. At the outset, let me extend a very warm welcome on behalf of Malgi Prabodhini, and I also thank especially Dr. Sukanya for inviting me to interact with you. As you watch our small documentary, and you get to know that Malgi Prabodhini is basically a training and research institute, and basically we are conducting capacity building programs of people's representatives as well as voluntary social activists. तो गत 40 साल से हम ये कार्य अपना कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने हमारे डॉक्यूमेंट्री में देखा कि काफी लीडरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और लीडरशिप यानी हमारे सामने लीडर वही होता है जो पॉलिटिक्स में आता है, वही लीडर हम उसको कहते हैं। ये सही है, लेकिन हमारे दृष्टि से लीडरशिप नॉट ओनली मैटर्स इन पॉलिटिक्स, बट लीडरशिप मैटर्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यानी कोई भी छोटी संस्था हो, यानी एखादा पुस्तकालय हो, एखादी व्यायामशाला हो, या एखादी महिला मंडल, महिलाओं की संस्था हो, या एखादी पतपेढ़ी हो, कोई भी चीज होती है उसको एक लीडरशिप चाहिए। इसके लिए लीडरशिप हम कहते हैं तो पॉलिटिक्स का ही खाली व्यू हमारे सामने आता है, लेकिन वो हाफ ट्रूथ है। लीडरशिप नीडेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमने केवल राजनीति नहीं चुना, तो राजनीति के अलावा समाज के हर क्षेत्र में, वॉलंटरी सेक्टर जिसे कहते हैं, या महिला क्षेत्र है, पर्यावरण है, यू नेम द फील्ड, उस फील्ड में हमने ट्रेनिंग का काम किया है। इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स है, और कोई भी संस्था हमारे पास आती है तो हम दोनों साथ में बैठते हैं, वी वर्क टुगेदर, और एक मॉड्यूल तैयार करते हैं। यानी कुछ मॉड्यूल हमारे हैं और कुछ मॉड्यूल नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे कहते हैं। ऐसे वी कंडक्ट नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपकी आवश्यकता क्या है उसके अनुसार हम वो मॉड्यूल बनाते हैं। तो ये 2 प्रकार के कार्यक्रम हम यहाँ पे करते हैं। अभी जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, तो ये प्रबोधिनी का ही एक आयाम है, एक अलग सी संस्था नहीं है। संस्था तो मूल मातृ संस्था तो मालगी प्रबोधिनी है, लेकिन उसको हमने एक अलग सा एक फैशनेबल नाम देना था। इसके लिए हमने ये लीडरशिप डेमोक्रेसी ऐसा उसको नाम दे दिया। उसका जो उसकी पृष्ठभूमि है
बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड ऐसी है कि हम लीडरशिप के तो कार्यक्रम करते ही आए हैं। जैसे हमने एक नेतृत्व साधना का एक छोटा सा हमने देखा होगा, हमारे फिल्म में उल्लेख आपने सुना होगा, वो नेतृत्व साधना 2011 से हम कर रहे हैं। यानी मालगी प्रबोधिनी जगह जगह जाकर कार्यक्रम का आयोजन करेगी अपेक्षा नहीं है। इट्स लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जैसे लोग आते हैं वैसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए लोग यहाँ पे आवे, ये मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए ट्रेनिंग एकेडमी। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हम जगह जगह जाके करते हैं। उसमें एक वन ऑफ द प्रोग्राम्स इज नेतृत्व साधना। द प्रोग्राम इज नेम्ड एज सर्टिफिकेट कोर्स इन सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये 7 दिन का कार्यक्रम का हमने पहले प्रारंभ किया। यानी भारत के जो प्रमुख सिटीज है, शहर है, जैसे मुंबई है, पूना है, इंदौर है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, ऐसे अलग अलग शहरों में जाकर हमने ये नेतृत्व साधना का 7 दिन का कार्यक्रम ये शुरू किया था 2011 में। उसमें यानी समाज के जो युवा है, वो युवा कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमने इस कोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया। 7 दिन का जो कोर्स था नेतृत्व साधना, उसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर ह्यूमन राइट्स तक हम ये चीजें लोगों को बताते हैं। तो ये कोर्स से कल्पना आई कि 7 दिन के लिए, और इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिला। यानी हर कार्यक्रम में 40-40, 50-50 युवा, और जो मैनेजमेंट सीख रहे हैं, जो स्वयं डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, ऐसे युवा इस कार्यक्रम में आने लगे। तो हमें ऐसा लगा कि सब जगह लीडरशिप की आवश्यकता है, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति के बारे में लोग गंदा बोलते हैं। यानी राजनीति कहने पर राजनीति यानी सभी भ्रष्ट ही है, राजनीति यानी समय का पालन नहीं करते हैं, अनुशासनहीन है सब, ऐसे ही सब एक लोगों के मन में एक निराशा, ऐसा एक वायुमंडल आज बना था, आज भी है कुछ मात्रा में। किसी को बोलेंगे मैं राजनीति में काम करता हूं तो लोग बोलते यानी ये केवल पैसा ही करता होगा और कुछ काम नहीं करता होगा, खुद का ही भला सोचता होगा। ऐसी एक सोच समाज की है। यानी वो कुछ मात्रा में सही भी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन? जनता भी जिम्मेदार है, राजनेता भी जिम्मेदार है, लेकिन जनता भी जिम्मेदार है। हमने ऐसे लोगों को चुनकर दिया जो समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को हम चुनकर लाते हैं, तो हम भी उसके लिए वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो ये बात ध्यान में आई कि 2014 के बाद इस देश में एक परिवर्तन हुआ। यानी नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नया भारत का सपना दिखाया युवाओं को, और उन्होंने एक अपील की थी कि हर क्षेत्र में जैसे युवा जाते हैं वैसे राजनीति भी एक अच्छा क्षेत्र है। राजनीति में भी युवाओं ने, जो लिखे पढ़े हैं, ऐसे युवाओं ने राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। तो उन्होंने एक अपील किया था, राजनीति में भी अच्छे युवा चाहिए ना। राजनीति समझो गंदी है तो उसको ठीक करने के लिए लोगों का सहभाग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो ही राजनीति अच्छी होगी। ये आह्वान को प्रधानमंत्री के हमने ध्यान में रखते हुए कि हमने सोचा कि जो नेतृत्व साधना हम 7 दिन का पाठ्यक्रम करते हैं उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन 8 महीना, 9 महीना, साल भर का ऐसा एक हम उपक्रम करेंगे, जिसमें हम युवाओं को न केवल क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे बल्कि प्रत्यक्ष फील्ड में जाकर उनको वो अनुभव लेंगे। ऐसा भी कार्यक्रम में हम उसका समावेश करेंगे। तो इस दृष्टि से 2017 में हमने ये इंस्टीट्यूट को नाम दिया, यानी उपक्रम के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और इसके माध्यम से हमने ये 9 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स पाठ्यक्रम विकसित किया, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप एंड गवर्नेंस। तो ऐसा एक अनूठा ऐसा एक पाठ्यक्रम हमने डेवलप किया, और हमें पहले लगा कि ये 9 महीने सीखने के लिए कौन लोग आएंगे, यानी इतना घर से बाहर आके कौन 9 महीना अपने लिए देगा। लेकिन हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि जैसे ही हमने ऐलान किया इस कोर्स पाठ्यक्रम के बारे में, तो लगभग 400 एप्लीकेशंस हमारे पास आए। 2017 की मैं बात कर रहा हूं, और वो उसमें भी एक सिलेक्शन की प्रोसेस हमने की है
कि कैसे पहले इसका एक तो उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये पाठ्य, मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं या ऐसा ही ओरली बताओ सुकन्या जी? You can show also the presentation, दोनों कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन किसी के पास है तो वो शेयर करें। Yes, Manpreet, you can share the presentation also. That will be better. तो हमने इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। एक तो लीडरशिप का एक डीप इंसाइट जिसे कहते हैं, सोशल पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज क्या है। नेक्स्ट करिए, ये बैकग्राउंड मैंने बताई है। नेक्स्ट देखिए, these are the objectives to provide a deep insight into the socio-political ground reality of India. Second, to inculcate and enhance leadership values and capacities. And third, to equip the participants with necessary skill sets for having a career in politics, public affairs, voluntary organizations and allied areas. एक तो socio-political ground realities है, जो जिसको समाज में काम करना है उसको ये रियलिटीज मालूम ही नहीं रहती है। यानी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक जारवा नाम की एक आदिवासी जात है। आज हम जाएंगे तो वो कपड़े के बिना रहते, नग्नावस्था में रहते, उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं हमारे भारत में रहने वाले, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। और दूसरी एक बात है कि जब अंडमान में कोई जाता है देखने के लिए, पोर्ट ब्लेयर से राधानगरी नाम का एक सी शोर है, समुद्र किनारा, वो देखने के लिए जाते हैं। वो जाते समय ये जहाँ पे जारवा लोग रहते हैं वो एरिया आता है, और सुबह जो अंडमान के उनको मालूम होगा, सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है, और उनके साथ पुलिस कॉन्वॉय रहता है। जितनी भी गाड़ियां जाती है वो समुद्र देखने के लिए, उनके यहाँ एक कॉन्वॉय रहता है, क्योंकि रास्ते में ये जारवा लोग रास्ते पर आते हैं, और हम लोग उनको देखने के लिए, वो नंगे आज कैसे रहते हैं वो देखने के लिए, जैसे प्राणी संग्रहालय में जू में हम लोगों को, प्राणियों को देखते हैं, वैसे उनकी तरफ हम देखते हैं। तो हम संवेदनहीन है, ये तो लज्जास्पद है। हमारे भाई बहने आज एक नग्नावस्था में, भारत को इतने 70-72 साल हो गए, उसके बावजूद एक हमारा समाज का घटक आज नग्नावस्था में रहता है, और उसे देखने के लिए हम जाते हैं, उनके लिए खाना फेंकते हैं, उनके लिए पैसा फेंकते हैं। तो ये आज भारत का चित्र है। इसके लिए ये जो ग्राउंड रियलिटीज है, आदिवासी जिसे कहते हैं, आदिवासी समाज जीवन क्या है, या महिला पुरुषों के बारे में भी जो भी हमारे मन में एक दुविधा रहती है कि पुरुषों के मन में स्त्री के बारे में कैसा वो देखते हैं, स्त्री को कैसा हीन समझते हैं पुरुष लोग, यानी इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये इक्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ये एक्चुअल जो सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज है, ये रियलिटीज हमारे लोगों को मालूम नहीं होती। यानी जो आज युवा पीढ़ी है उनको एक्चुअल समस्या, दलितों की समस्या क्या है, उनको मालूम नहीं रहता है। इसके लिए सोशियो पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी जो है, वो ग्राउंड रियलिटी में डीप इनसाइट, इनको वो आकलन शक्ति उनकी बढ़ाना, उनमें संवेदनशीलता बढ़ाना। तो ये उसका है, क्योंकि जो लीडर होता है, समाज को लीड करता है, उसको ये सब मालूम होना चाहिए। आपको संवेदना कब आएगी? जब आपको वो समस्या मालूम होगी तो ही संवेदना आएगी ना। इसलिए वो कंसर्न जिसे कहते हैं, तो ये तभी आएगा जब आपको मालूम होगा। तो ये उन युवाओं को ये बताना, दिखाना। दूसरा है एनहेंस लीडरशिप वैल्यूज एंड कैपेसिटी। लीडरशिप भी एक वैल्यूज होती है। वो वैल्यूज क्या है, लीडर कैसे होना चाहिए, उसके बारे में भी, जैसे रामबाव मालगी जिनके बारे में ये संस्था खड़ी है, 9 जुलाई को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो ही वॉज ए लीडर पार एक्सलेंस। आदर्श जनप्रतिनिधि कैसे होगा उसका उदाहरण रामबाव मालगी है। तो ऐसे भी आदर्श और देखिए, अच्छे लोग सभी पार्टीज में होते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो भी सभी पार्टीज में है। ऐसा तो एक ही पार्टी है उसमें सब अच्छे हैं, ऐसा हम नहीं कहते, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। इसके लिए हम ये जो कोर्स पाठ्यक्रम हमने बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए केवल नहीं बनाया है। इसमें देखिए, हमारी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की है, लेकिन इस पाठ्यक्रम में हम जो युवा आते हैं उनको कभी बताते नहीं है कि यू वर्क फॉर द वन पर्टिकुलर पार्टी। इट इज अप टू देम टू डिसाइड टू whom
दे शुड वर्क। तो इसके लिए ये हमने उस दृष्टि से कोर्स हमने सेक्युलर रखा है इन दैट सेंस। नई चीजें ये नेसेसरी स्किल सेट, यानी आज लीडर होता है मैं टाइपिंग करता थी तो मैनेजमेंट, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, जैसे संगठन बढ़ाना है तो संगठन शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, या पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए, हमने हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा ऑफिस एक अच्छा कैसे होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है, जो मैनेजमेंट स्किल्स बोलते हैं, ऐसे ये कोर्स में हम सिखाते हैं। तो ऐसे दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट देखिए आउटकम क्या है इसका। मैं कॉल करता हूँ वो रामबाब वालजी की पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल वर्कर्स, ये पाठ्यक्रम से जो होता है वो अच्छा, उसको एक दिशा मिलती है राजनीति करने कैसी करनी चाहिए। स्किल्ड एंड इक्विप्ड ह्यूमन रिसोर्स गवर्नेंस बोथ विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड, उसका हम उसको अनुभव भी देते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। सेंसिटाइज एंड सोशो पॉलिटिकल अवेयर यूथ, जो मैंने बताया कि संवेदनहीनता जो है, वो संवेदनहीनता जाकर वो संवेदनशील कैसे बने, तो इसके भी उदाहरण हमारे पास है। Next slide, please. Okay, 4 pillars of IIDL: extensive exposure, sound knowledge, deeper understanding, and collective mentoring. ये 4 आयाम है। ठीक है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है? हम जैसे सोशल मीडिया पर इसका एक निवेदन देते हैं और उसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, हमारे एक एडवाइजरी कमिटी है, हमारे तुम्हारे पास होगा। तो ये मैं नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। आई कांट। तो लोग इसमें अप्लाई करते हैं और केवल 30 चेक करना सिलेक्शन करते हैं, और वो भी सिलेक्शन में हम उनको बताते हैं, एक तो ग्रेजुएशन कंपलसरी है, दूसरा है वो उसके बारे में उसकी इंटेग्रिटी कैसी है, तीसरा है 9 महीना या उसको रहना पड़ेगा कैंपस में। तो ये सब देख, और उसको हम कहते हैं कि आप हमें एक नोट लिख के दे दो कि व्हाई डू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, एक उसका हमें लिख के दे दो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके आधार पर हम लोगों का सिलेक्शन करते हैं, बाद में फेस टू फेस इंटरव्यूज लेते हैं और उसके बाद उनका चयन होता है। तो ऐसी एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। तो 300-400 लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोग तो पहले ही हम साइड में रखते हैं उनको, क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं होते फिर भी अप्लाई करते, लिख के नहीं देते, और लिखने के बाद वो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर फेलो इज सिंसियर और नॉट। तो उसके आधार पर हम ये क्राइटेरिया लगा के फेस टू फेस इंटरव्यूज करते हैं और बाद में उनको सिलेक्ट करते हैं। तो ये 9 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, लीडरशिप मैनेजमेंट और गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, ऐसे मॉड्यूल्स, हर एक विषय के मॉड्यूल्स है। यानी पॉलिटिक्स के बारे में पहले 2 महीने का, बाद में 2 महीने में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एंड थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इन हाउस लेक्चर्स होते हैं। पॉलिटिक्स में भी मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर भारत की पूरी राजनीति, पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री है, उसके बारे में जो पॉलिटिकल लीडर्स होके गए सभी पार्टीज के, नॉट ओनली द इंडिया, वर्ल्ड ओवर, तो उनके बारे में भी उनको बताना, ये भी होता है। और मैंने जो कहा कि हम कैसे सेक्युलर इस कोर्स को रखते हैं, समझो कांग्रेस के बारे में बताना है तो आवर पीपल शुड नॉट टॉक अबाउट कांग्रेस, क्योंकि हमारे मन में कांग्रेस के बारे में एक बायस हो सकता है मत। इसके लिए कांग्रेस के बारे में बताना है तो हम कांग्रेस के लीडर को बुलाते हैं यहाँ पे। यदि कम्युनिज्म के बारे में बताना है तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाला जो भी उनका कार्यकर्ता होगा उसको हम बुलाते हैं। तो ऐसे, इसके लिए मैंने कहा कि ये सेक्युलर कोर्स है। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि अभी हमारी ये 5th बैच अभी होगी इस सितंबर से। ऑलरेडी 4 बैचेस हमारे पूरे हुए। तो 4 बैचेस में 2 मौके ऐसे आए कि एक बार कांग्रेस का दिल्ली का कार्यकर्ता इसमें पूरा समय रहा, सम्मिलित हुआ, और सेकंड बैच में थर्ड बैच में कार्यकर्ता फ्रॉम AIADMK, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड फॉर 9 months। तो अलग अलग पार्टी के लोग भी इसमें आते हैं। इसके लिए हम वो क्राइटेरिया नहीं लगाते आप कौन से पार्टी से संबंधित हो, दैट इज नॉट आवर क्राइटेरिया। तो इस दृष्टि से हमने ये पाठ्यक्रम अनबायस ऐसा ये रखा है। तो ये 3 कंपोनेंट्स है, 3 की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट,
लगभग 250 से ज्यादा इसमें जो रिसोर्स पर्सन है हर एक इसके वो आते हैं। जैसे सुकन्या जी स्वयं यहाँ पे 2 बार आके गई है। देखो इसकी पद्धति कैसे रहती है, क्लासरूम लेक्चर्स बाय एकेडमिशियंस, पॉलिटिशियंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जर्नलिस्ट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सेकंड, दूसरा उसका पहलू है रेगुलर फील्ड विजिट्स 1 in fortnight, यानी 15 दिन में एक विजिट हम करते हैं। जैसे यहाँ पे मीरा भाईंदर नगर निगम है तो उसको विजिट करना, मुंबई में हाईकोर्ट को विजिट करना, एक आदिवासी विलेज है ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, उधर लेके जाना। लोगों ने आदिवासी विलेज देखा ही नहीं है, जमीन पर कभी सोया नहीं है, तो वहां वो सोते हैं जमीन के ऊपर, वहां जाके वो जो खाना खाते वो वहां पकाते वो खाते, तो उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है। 2 स्टडीज टूर्स, प्रैक्टिकल्स वेयर एवर नीडेड, सिमुलेशंस, टेस्ट्स आफ्टर एवरी मॉड्यूल और इंटर्नशिप, ऐसे पूरे पाठ्यक्रम की ये कार्य पद्धति है। बीच बीच में हम उनको कुछ मूवीज भी दिखाते हैं जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, जिससे उनकी संवेदना बढ़ेगी। ऐसे कुछ पिक्चर्स भी दिखाते हैं, कुछ पुस्तकों का परीक्षण होता है, कुछ पुस्तकें उनको पढ़ने के लिए देते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है। तो ये कुल मिला के उसका एक स्वरूप है। और इंटर्नशिप होती है, यानी पूरा पाठ्यक्रम करने के बाद उनकी एक रिटर्न एग्जाम होती है और 2 महीने की इंटर्नशिप हम करते हैं। किसी राजनेता के पास, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, कोई सरकारी कचेरी हो, कार्यालय हो, इसमें 2 महीने की उसको हम इंटर्नशिप देते हैं। नेक्स्ट, और भी आगे ना, ये कुछ मीडिया कवरेज आया था उसके बारे में मैं पढ़ूंगा नहीं। क्लासरूम लेक्चर्स, जैसे अर्णव गोस्वामी ने एक उद्घाटन किया था एक पाठ्यक्रम का, और इसमें दिल्ली भी उनको हम लेकर जाते हैं और दिल्ली में जाकर दिल्ली के सांसद दिखाना, और दिल्ली में जाने के बाद हर पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता रहते हैं उनके साथ उनके हम इंटरएक्शन करते हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट, लगभग 250 से ज्यादा लेक्चरर्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ चित्र है उस कार्यक्रम के। अभी आज तक ये लेक्चरर्स कौन कौन है उनके नाम है। कोएनराड एल्स भी आके गया, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स। नेक्स्ट, field visits to interiors of India. Next, next, हाँ, एक कार्यक्रम मैं बताऊंगा कि एक एक्सपीरियंस उनको हम प्रत्यक्ष इलेक्शन का भी देते, और हमारे भारत में कहीं ना कहीं इलेक्शन तो रहती है हर साल। तो इस बार जो हमारी चौथी बैच थी, यह चौथी बैच पूरी आसाम के इलेक्शन में गई थी। हमारे 25 पार्टिसिपेंट इस बार थे। कोरोना पीरियड में भी 25 लोग हमें मिले, बहुत अच्छे। और इनको सबको हम लेकर 1 महीना असम में, गुवाहाटी में सब रुके थे, और इलेक्शन मैनेजमेंट का अलग अलग का काम सबको दिया था। तो इलेक्शन कैसे होती है इसके बारे में भी उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है। बाद में कुछ सर्वेस के लिए हम उनको देते हैं, काम देते हैं, आजू बाजू में 4-4, 5-5 ग्रुप बनाकर उनको कुछ समस्याएं देते हैं, उसके बारे में वो सर्वे करके उसका रिपोर्ट भी देते हैं। नेक्स्ट, ये दिल्ली टूर का चित्र है, राष्ट्रपति भवन में बाद में गए थे हम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मॉडल पार्लियामेंट करते हैं और मॉडल यूएन भी करते हैं। उनको ही हम कहते हैं कि आप एक अभिरूप संसद जिसे कहते हैं वो आप चलाओ। और वैसे मॉडल यूएन का भी हर एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रमुख देश का नाम देकर एक मॉडल यूएन भी हम करते हैं, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस उनको मिलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कुछ पुस्तकें और फिल्म्स है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल सेशन, आरटीआई कैसे करना, पीआईएल कैसे करना, मीडिया के बारे में, यानी लीडर के लिए जितनी क्वालिटीज आवश्यक है वो सब क्वालिटीज के बारे में हम उनको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट,
इंटर्नशिप कहाँ की उसका एक वर्णन है। नेक्स्ट। देखो 406 लेक्चर्स, लगभग 400 लेक्चर्स होते हैं। फैकल्टीज 168, एक बैच का ये वर्णन है। फील्ड विजिट्स 21, वीक लॉन्ग स्टडी टूर्स 2, मूवीज सीन 8, एक बैच का एक ये वर्णन है। नेक्स्ट। अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब है। मुझे लगता है ये इतना काफी है। प्रेजेंटेशन बंद करो। अभी इस साल ये 5वीं बैच हमारी होगी। अभी 4थी बैच हमारी चल रही है, लेकिन ये कोरोना और लॉकडाउन के कारण 2 कार्यक्रम उनके बचे हैं। एक तो दिल्ली में लेके जाना, वो बचा है क्योंकि दिल्ली में भी लॉकडाउन था और महाराष्ट्र में भी था। और हाँ, कहने का मतलब है कि केवल महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं है। ये पार्टिसिपेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इसके लिए हर साल 12, 13, 15 राज्यों से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। केवल महिलाओं का प्रमाण थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कभी 1 कभी 2, इस बार 4 महिलाएं थी, तो वो भी आ रही है धीरे धीरे। अभी इस साल हमने 5वीं बैच हमारी अगस्त सितंबर से शुरू होगी। अभी अरुणाचल प्रदेश से एक महिला ने अप्लाई किया, उसको हमने सिलेक्ट किया है, तो वो एक सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यूज और वो सब चल रही है। अभी ऑलरेडी 5वीं बैच के लिए 10 नॉमिनेशंस हमारे हुए हैं, तो ये चल रहा है। अभी 4 बैचेस हमारे हो गए, एवरेज 25 लोग हैं, तो 100 लोग अभी हमारे ये हर एक पाठ्यक्रम में सब मिलाकर आज 4 साल हुए, तो 4 साल में 100 प्रतिनिधि यहाँ पर ये पाठ्यक्रम कर देंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि इसके बाद वो क्या करते हैं, ये भी किसी के मन में प्रश्न आता है, तो हम उनको पर्याय देते हैं। उनको फील्ड पॉलिटिक्स में काम करना है, यानी उनको चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है या पार्टी संगठन में काम करना है, तो हर एक का हम इंटरव्यू लेते हैं और उनको अपने अपने कार्यकर्ताओं को हम जोड़ते हैं और बाद में वो अपना अपना करियर करते हैं। इसके लिए आज अभी भी यार 100 में से लगभग 15-20 लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव लड़े हैं। कोई ग्राम पंचायत का हो, कोई नगर निगम का हो, उस चुनाव प्रक्रिया में स्वयं भी लड़े और चुनाव में काम भी किया है। तो ये कुल मिला के एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है और उसको एक अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। तो ये कुल मिला के अबाउट इंस्टीट्यूट एंड अबाउट दिस कोर्स, तो मुझे लगता है कि जितना आवश्यक था उतना मैंने बताया। हाँ, और इस पाठ्यक्रम की फीस रहती है, ये कोई फ्री नहीं है, लगभग 3 लाख रुपया इसका कोर्स का फीस है और लोग भरते हैं और इसमें भोजन, रहना, घूमना, ट्रेनिंग मटेरियल, ये सब है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। और अभी ये सब पाठ्यक्रम होने के बाद हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। और अभी यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी नासिक की है, उनके साथ हमारा टाइप है। लेकिन हम और भी विदेश में जैसे सिंगापुर यूनिवर्सिटी है और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है, उनके साथ हम टाइप कर सकते हैं क्या इस पाठ्यक्रम के बारे में, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन इसको दिन ब दिन अच्छा उसको ये मिल रहा है, प्रतिसाद मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी आवश्यकता वो मैंने बताने का प्रयास किया है। इफ देयर आर क्वेश्चंस, the forum is open. Sir, it was very, very insightful, very, very learning, it was a learning experience for me. मैं सोच रही हूँ कि शायद 5-6 साल के पहले मैं अगर इससे परिचित होती तो मैं भी भर्ती हो जाती थोड़ा। तो ठीक है, अभी भी कोई समय की पाबंदी नहीं, उम्र शायद उसमें फिट नहीं हो सकते हैं, बट nevertheless जो यंगर जनरेशन है, they are going to be very blessed. मेरा एक ही because I have a both industry and academia experience, so मैं कभी-कभी मेरा सोच ऐसा भी होता है कि पॉलिटिक्स में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. That is most important because in this day and age of information हमें प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल होते हैं तो वी विल नो ओके ये कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन में जा सकते हैं, एथिकली वी कैन डू इट एंड विथ लॉट ऑफ लाइक अभी आप सब परिचित होंगे ट्विटर का हमारे
इंडिया में कैसा कंप्लायंस इश्यूज आ रहा है, कैसा इंटरमीडिएरी रोल अभी आज उसको वंचित किया गया है. सो ऑल दीज इश्यूज, कंप्लायंस इश्यूज, ग्रीवेंस एड्रेसल, सो ये सब हमें कॉर्पोरेट एक्सपोजर में मिलता है. सो ये जो आपका जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है सर, I hope, I think you also will incorporate है क्या, आप ऐसा भी एक कोर्स है जिसमें all these issues are also dealt, like you know where like corporate training जैसे एक मॉड्यूल आपके पास है क्या? क्योंकि अगर वो फ्यूचर में लीडर्स बनते हैं तो अगर हम अभी कोरोना काल में हैं, आ गए, इससे हम प्री कोरोना काल में तो जा नहीं सकते. We are all in post corona period. So in this period, we are evolved, we are transformed, we are in digital age. So professionalism में एक ट्रेनिंग जब हम बोलते हैं, वो this is going to be different one. So वो आपके इसमें पाठ्यक्रम में है क्या, सम्मिलित है क्या? नहीं, already what you told, we already included in our पाठ्यक्रम. ये सब बातें, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना, Yes. इसके बारे में भी ये पाठ्यक्रम में सिखाया जाता ही है. और सोशल मीडिया के लिए अलग सा एक पाठ्यक्रम में 2 दिन का कोर्स है, वो तो हम करते ही है. लेकिन पर्टिकुलर ये जो लीडरशिप का कार्यक्रम है, इसमें हम इसका इंक्लूजन है ही, ये तो सिखाते ही है. देखिए, हमारा ट्रेनिंग की विशेषता ये है कि एक तो प्रेरणा, मोटिवेशन इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड. तो प्रेरणा का अभाव रहता है तो मोटिवेट करना, तो मोटिवेशन एक पहला एंगल है. दूसरा है अपनी आइडियोलॉजी. किसी भी पार्टी में वो काम करे, लेकिन आइडियोलॉजी को भूलना नहीं चाहिए. और तीसरा, आइडियोलॉजी के साथ जो फंक्शनल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, वो फंक्शनल ट्रेनिंग भी आता है. और उसको जोड़ते हुए आपने प्रोफेशनल अप्रोच जो कहा, प्रोफेशनल बातें कही, वो प्रोफेशनल बातें भी उसको सिखाते. आइडियोलॉजी भी महत्व की है और प्रोफेशनलिज्म भी महत्व का है. केवल आइडियोलॉजी महत्व की है, प्रोफेशनलिज्म ऐसा नहीं है. ये दोनों का मिलाप आवश्यक है आज की स्थिति में, तो ही अधिक प्रभावी ढंग से हम काम कर सकेंगे. मैंने तो खुद आपके इस इंस्टीट्यूट में 2 बार लिया है सेशन, तो मैं वाकिफ हूँ. और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि ऐसे जो जब आपकी जो इंस्टीट्यूट है, जो उभरते हैं नेता लोग, तो दे विल बी द फ्यूचर, आई थिंक, लीडर्स with lot of perspective, with lot of insights. I think मैं बहुत कुछ मैंने सीखा है आपके डॉक्यूमेंट्री से. और मुझे लगता है कि जो भी श्रोता लोग आज हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपके बारे में, अभी आपके IIDL के बारे में सुना है, देखा होगा. और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लार्ज नंबर्स दे गेट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट. एंड मेरा एक और भी एक उम्मीद है कि इन फ्यूचर यू शुड गो ग्लोबल. Like this is our venture, our Indian institute. It should, people should come from other parts of globe and should access this particular insight. I think with these insights, I'll also. One second, सुकन्या जी, एक ही मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, जो भी दर्शक बंधु भगिनी सभी है. एक तो बहुत अच्छा लगा आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने ये मौका उपलब्ध कराया. और दूसरी बात, प्रबोधिनी में आपका इंटेलेक्चुअल सेल के जो भी कार्यकर्ता है, उनको लेकर आप यू शुड विजिट प्रबोधिनी एट योर कन्वीनियंट डेट, कन्वीनियंट टाइम, व्हाटएवर. तो हम आपके लिए स्वागत है, आप कभी भी यहाँ पे आइए. अभी तो अनलॉक प्रोसेस शुरू हुई है, इसके लिए हमारा तो ऑफिस कभी बंद था ही नहीं. अभी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष फिजिकल कोर्सेज तो बाद में चलेंगे. 1 जुलाई से हम वो करने जा रहे हैं. तो सबको मेरा अपील है, सबसे निवेदन है कि कृपया आप जरूर हमारे यहाँ आइए देखने के लिए, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग. इसके लिए वो देखने के लिए आइए, नंबर 1. नंबर 2, ये कोर्स की जो जानकारी है, हमारी वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट आप विजिट करिए. और जिसकी बात हमने ट्विटर की आपने बात की, तो आपके ट्विटर हैंडल में हमारे इंस्टीट्यूट, यानी ये उसकी प्रोसेस चल रही है, इसके लिए आपके ट्विटर हैंडल में ये IIDL का जो भी जानकारी है, आप उसको ट्वीट करिए. तो आपके माध्यम से भी 2-3 कार्यकर्ता आ सकते हैं. तीसरी बात, ये पाठ्यक्रम में अलग अलग विषयों के ऊपर भाषण होते हैं. जैसे आप हमारे यहाँ आई, वैसे आपके इंटेलेक्चुअल सेल में भी अनेक तज्ञ व्यक्तियां होगी.
Yes. So if you want to contribute in Prabodhini, always welcome. Sure. Just send me your professional CV और आपके विषय कौन से विषय में आपको रुचि है, so that we can connect. Sure. तीसरी अंतिम बात, एक बार प्रबोधिनी के मंच पर कोई भी आता है तो वो प्रबोधिनी परिवार का घटक बनता है, ऐसा हम मानते हैं, बिकॉज वी वैल्यू रिलेशनशिप. इसके लिए आज मैं जिनको देख रहा हूं और जो मुझे देख रहे हैं वो सब प्रबोधिनी के हो गए, ऐसा मैं मानता हूं. इसके लिए ऑलवेज वेलकम फॉर इन प्रबोधिनी. आप जरूर यहाँ पर आइए और आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद.